Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the class. My name is Qasim Sajjad and today we are going to talk about chi-square distribution. As you people know that we are talking about 8614 educational statistics and today is our last lecture, unit number 9, chi-square distribution. Let's start with the learning objectives of this unit. After the completion of this unit, student will be able to define chi-square distribution and its uses. What is chi-square goodness of fit test? Write down the procedure for goodness of fit test. When to use chi-square goodness of fit test, and write down the basic framework of goodness of fit test. What is the chi-square independence test, and write the process of chi-square in SPSS. तो बेसिकली आज जो हमने देखना है, हमने जानना है कि काई स्क्वायर क्या है और काई स्क्वायर में जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है जो कि बेसिकली पेयरसन काई स्क्वायर है, उसका मतलब उसका इस्तेमाल करने का तरीका और उसके यूजेस और साथ ही साथ हमने काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट देखना है. Outline of today's session is definition, milestone in statistics, chi-square test goodness of fit, chi-square test for homogeneity of proportion, chi-square independence test, and limitation of chi-square. Let's start with the definition and the introduction of the chi-square. The chi-square statistics is commonly used for testing relationship between categorical variables. ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी जो वेरिएबल है उसकी चार मेजरमेंट्स हो सकती हैं, या वो नॉमिनल हो सकता है, या वो ऑर्डिनल हो सकता है, या वो इंटरवल स्केल हो सकता है, या वो रेशो स्केल हो सकता है. तो कोई भी वेरिएबल है उसकी चार मेजरमेंट्स होती हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है कैटेगोरिकल की. ठीक है, जब आप कैटेगरी बना लेते हैं, दो कैटेगरीज या दो से ज़्यादा, तो हम दो वेरिएबल्स जो कि कैटेगोरिकल हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए काई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं. Let me read the second point. The chi-square distribution is the distribution of the sum of these random samples squared. The degrees of freedom are equal to the number of samples being summed. The greater the degree of freedom, the more the chi-square distribution looks like a normal distribution. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद है कि जब आप मीन निकाल लेते हैं किसी भी डाटा का, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के दरमियान की वैल्यू होती है कि किस हद तक उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ज़्यादा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा, बेसिकली बेल शेप्ड कर्व शो करेगा. ठीक है, बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी. सो the chi-square statistics is used for testing relationships between categorical variables. Once again वो कहता है दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप देखने के लिए chi-square का टेस्ट इंप्लीमेंट किया जाता है, लगाया जाता है. इज देयर अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वोटर इंटेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप. अब हम एक देखना चाहते हैं कि हमने दो चीज़ें देखनी है, एक वोटर इंटेंट, ठीक है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप. तो क्या इनका आपस में कोई एसोसिएशन है? इस तरह की कोई भी हम एसोसिएशन देखने के लिए chi-square लगाते हैं. chi-square test involves the calculation of chi-square. Chi-square is derived from the Greek letter chi. Chi is pronounced as ki. बेसिकली इसको chi-square हम पढ़ते हैं लेकिन इसको की कह सकते हैं, CHI, की. chi-square was developed by Carl Pearson. ये तीन एज एन MCQs आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप. chi-square test is a non-parametric test. It follows a specific distribution known as chi-square distribution. Calculation of chi-square value has three essential requirements for chi-square test are a random sample, qualitative data, and the lowest expected frequency not less than 5. तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए डाटा में chi-square को अप्लाई करने से पहले. A common usage of chi-square test is a Pearson. यहाँ पे different name बताए जा रहे हैं. Now you can see वो जो आपने learning objectives में नाम सुना goodness का, ठीक है, best goodness of fit test का, वो यहाँ पे बताते हैं कि basically a common usage of chi-square test is Pearson chi-square test, also known as chi-square goodness of fit test. तो जो Pearson chi-square test है उसी का दूसरा नाम है
काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। तो कभी आपसे एमसीक्यूज में या कहीं पे कोई पूछ लेता है किसी भी फॉरम पे कि जो पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट है वो किस तरह काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से डिफरेंट है, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों एक ही टेस्ट के दो नाम है। और अगर काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस की बात है तो वो भी उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। So the chi-square test is used to compare a group with a value or to compare two or more groups always using a categorical data। तो यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि हमेशा डाटा कैटेगोरिकल ही होगा। जब भी आपने काई स्क्वायर लगाना है तो आपके पास डाटा कैटेगोरिकल होना चाहिए। और बेसिकली काई स्क्वायर जो लगता है ये दो ग्रुप्स के दरमियान या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान में आपने उनको कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो जब भी आपने एसोसिएशन रिलेशनशिप देखना है या ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो आप काई स्क्वायर लगाएंगे। Chi-square test is most commonly used when data are in frequencies such as the number of responses in two or more categories। ठीक है, जब आपने एक फ्रीक्वेंसी ली है, मतलब आपने डाटा लिया है फॉर एग्जांपल रिलीजन का, ठीक है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, दो कैटेगरीज होगी ना। आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज योर रिलीजन, यू विल से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो आपके पास दो कैटेगरीज हैं। या मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फूड कौन सी लेते हैं, बेसिकली वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आगे हमने डिस्कस करनी है। फूड आप कौन सी पसंद करते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, या आप सब्जियों को पसंद करते हैं या आप सब्जियों को नहीं पसंद करते, गोश्त को पसंद करते हैं। सो देयर आर टू कैटेगरीज, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो जब भी डाटा लेंगे कैटेगोरिकल लेंगे, दो या तीन रिस्पॉन्सेज होंगे बस, और आप उनके ऊपर ये काई स्क्वायर लगाएंगे दो ग्रुप्स के ऊपर एसोसिएशन देखने के लिए। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। इन डिस्क्रिप्टिव व्हाट वी डू, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली क्या देखना चाहती है, वो डाटा को कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। ऑन द अदर हैंड इन्फ्रेंशियल के अंदर टोटली काई स्क्वायर टेस्ट है, वो उसको सर्कल करके दिखा रहे हैं कि ये सारी चीजें काई स्क्वायर के जरिए आप कर सकते हैं। बट आपके पास जो डाटा टाइप है वो या तो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव के अंदर यहाँ पे वो बता रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, quantitative and qualitative। quantitative will be discrete or continuous, qualitative will be nominal or ordinal, and continuous data will be interval or ratio scale। काई स्क्वायर कौन से वाले डाटा को करता है, काई स्क्वायर हमेशा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो ये नॉन पैरामीट्रिक डाटा के ऊपर लगता है। सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इन स्टैटिस्टिकल वर्क। तो ये उसके कुछ स्टेप्स है काई स्क्वायर को अप्लाई करने के। डिफाइन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसा कि हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको अगर लगे कि मिस कर रहे हैं हम, बेसिकली वो मिस नहीं की जा रही, वो पिछली सेशंस के अंदर डिस्कस की जा चुकी हैं। जैसे कि ये देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, वन इज नल एंड वन इज अल्टरनेटिव। इन नल हाइपोथेसिस वी यूज नो एंड इन अल्टरनेटिव वी यूज सिंपल। फिर उसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है एंड ऑल। पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन हाइपोथेसिस, देन स्टेट अल्फा, देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन स्टेट डिसीजन रूल, कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स। तो ये सारे स्टेप्स हम आगे प्रैक्टिकली भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर? This test is based on frequencies and not on parameters like mean and standard deviation. It is used for testing hypotheses and is not useful for estimation. It possesses additive property as has already been explained. This test can be applied to a complex contingencies table with several classes and is a very useful test in research work. A non-parametric test, as no rigid assumptions are necessary in regard to the type of population, no need of parameter values and relatively less mathematical details are involved। तो ये कुछ खसूसियात बताई हैं कि इसमें मैथमेटिकल जो डिटेल्स हैं वो कम से कम होती हैं। एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर आप मीन, मोड, मीडियन नहीं निकालते हैं, बस फ्रीक्वेंसीज लेते हैं कि कितने % लोग ने क्या जवाब दिया। जो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं और ये ज़्यादातर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट। A chi-square test of independence is the second important form of chi-square test। पहला गुडनेस वाला था, नाउ इंडिपेंडेंस।
It is used to explore the relationship between two categorical variables. Each of these variable can have two or more categories. तो अब ये वही बातें हैं, बस नाम चेंज किया है, और बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इसमें आप दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक देखते हैं, जिसमें से एक वेरिएबल ऐसा है जिसके पास दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी. It determines if there is a significant relationship between two nominal variables. ठीक है, nominal basically categorical को ही कहते हैं ना. The frequency of one nominal variable is compared with the different values of the second nominal variable. बात समझ आ रही है? Very much simple. एक categorical variable को दूसरे categorical variable के साथ चेक करते हैं. Topic of chi-square. We want to find out. अब आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने लगा हूँ कि आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दी भी है कि रिलीजन और ईटिंग, खाना, कौन सा खाना पसंद करते हैं और आपका रिलीजन क्या है. अब देखें कोई ताल्लुक नहीं है इसका आपस में, तो हमने देखना क्या रिसर्च करके देखते हैं कि इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है. ठीक है, प्रोमिनेंटली हम जब देखते हैं नॉर्मली तो नहीं है, लेकिन हम रिसर्च की बेस पे इसको प्रूफ करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दैट इज are they dependent or independent. The chi-square test is appropriate for this task. Here you can see the null hypothesis and the topic. A study to explore the association between food selection and religion. This is our topic. Now we draw a null hypothesis that is denoted by HO. There is no statistical significant association between food selection and religion. तो वो कहता है इसमें कोई ताल्लुक नहीं है. तो देखते हैं हमारी ये बात कि हमें लगता है कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन. तो क्या ये सही है या गलत. हमने डाटा ले लिया, तो हमने आप अगर देख सकते हैं वेरिएबल 1 एंड 2, 1 के अंदर हमने ईटिंग रखा है, 2 के अंदर रिलीजन रखा है. ईटिंग के अंदर हमने देखा कुछ लोग मीट ईटर हैं, कुछ वेजिटेरियन है, वीट ईटर वेजिटेरियन, मीट ईटर वेजिटेरियन, और आगे उनका रिलीजन लिखा है नॉन रिलीजन क्रिश्चियन, नॉन रिलीजन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन नॉन रिलीजन एंड ऑल. आगे गए तो हम क्या करेंगे ये बात याद रखें मेरे बच्चों, जब आपने ये टेस्ट लगाना है तो आप यहाँ पे जाके अपने टेस्ट को अप्लाई कैसे करेंगे. आप यहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ईटिंग एंड रिलीजन, तो ईटिंग को आप क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा. तो ये पहले एरो के साथ आप उसको रोज के अंदर ले जाएंगे. क्लिक करने के बाद एरो को क्लिक करेंगे, वो रोज में चला जाएगा. नाउ यू विल सेलेक्ट द रिलीजन एंड क्लिक ऑन दैट एरो एंड इट विल बी मूव टूवर्ड कॉलम्स. तो उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे. नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करने से वो chi-square का आपको यहाँ पे साइन देगा, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आप इसको सेकंड वाले को फाई एंड क्रैमर्स को क्लिक कर लेंगे. देन व्हाट यू विल डू, यू विल सी द स्क्रीन लाइक दिस, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड. आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे. देन यू विल डू कंटिन्यू. ठीक है, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट्स शो होंगे, जिसमें पहला आपको बॉक्स शो कर रहा होगा केस प्रोसेसिंग समरी, कि आपके पूरे डाटा की समरी देगा कि जी 30 पार्टिसिपेंट लिए 100% रिजल्ट्स आए हैं. ठीक है, मतलब रिजल्ट से मुराद 100% मुराद कि जितनों को भी डाटा दिया है सबका डाटा मुकम्मल है. ठीक है, कोई मिसिंग नहीं है. ठीक है, तो इस तरह आपको इससे इसकी वैलिडिटी का पता चलता है. फिर जब आपने नीचे देखा रिलीजन क्रॉस टैबुलेशन, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इसकी नजर आएंगी. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने देखना है, जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं अपने रिजल्ट्स, वो है chi-square टेस्ट. इसमें वैल्यू की यहाँ पे दिखाई जा रही है, वैल्यू किसकी, पेयरसन chi-square की, दैट इज 6.718. और सेकंड इंपॉर्टेंट जो वैल्यू हमने देखनी है दैट इज टू साइडेड सिग्निफिकेंस देखनी है, ये है 0.010. तो इससे पता चलता है कि ये सेलेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है. तो हम आगे इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं. द chi-square statistics appear in the value column of the chi-square test table immediately to the right of the Pearson chi-square. तो कहता है Pearson chi-square जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही पहला टेबल जो है उसमें वो शो करता है किसकी वैल्यू, chi-square की, डेट इज 6.718. ऐसा ही है, आपने ऐसे ही देखा, ऐसे ही था बिल्कुल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ p, जिसको वहां पे किस नाम से लिखा गया है, असिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस टू साइडेड, जिसकी वैल्यू थी 0.010. अब वो कहता है नॉर्मल वैल्यू जो होती है किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए वो 0.05 होती है. अगर 0.05 या उससे कम हो तो आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस को.
तो ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है दैट देयर इज नो एसोसिएशन और नो रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड रिलीजन। फूड का रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.010 आई है जो कि 0.05 से नीचे है। सो हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, और हमारा नल हाइपोथेसिस हमें कहता था कि there is no statistical significant association between food selection and religion, no association। so ये हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, और हमें पता चला कि कोई ताल्लुक नहीं है इनका आपस में। These are the sources if you want to perform such if you want to perform some application on SPSS, you can download SPSS, you can watch videos regarding SPSS, and you can learn through the manual of SPSS, and you will be guided through these sites that how to use SPSS। वैसे तो मैंने बता दिया आपको step by step, but if you need more help you can use these links। and this is the self assessment। if you have a copy in your hand and a pen, you can write down these questions and you need to answer these questions. If you could answer all of these questions, that means you just achieved all the objectives of this session. And if you are unable to answer these questions, that means you need some more guidance and support. For that reason you need to uh, watch that video again, or you need to talk to me. So just drop a comment in the chat box so I could reply you and I could clear your confusion. Thank you very much. Jazakallah.